Good morning, dear students. We'll start with our this PMI mathematical induction. The remaining problem I'm taking. This in exercise you have a couple of some still it is there. Those problems I'm going today. See the first question. It is question number 8. Again, we have to prove that by method of induction that this statement is true for all natural number, for all n belongs to natural number. Question is 1 upon 1 into 3 plus 1 upon 3 into 5 plus 1 upon 5 into 7 plus so on. This is 1 upon 2n minus 1 into 2n plus 1 is equal to, this is n upon 2n plus 1. Fine. This is what a statement. So again the same thing, what we have to, how we start, we take this statement as a Pn, correct? So let Pn is equals to this statement 1 into 1 by 3 plus 1 upon 3 into 5 plus 1 upon 5 into 7 plus so on upon 1 upon 2n minus 1 into 2n plus 1, fine, is equal to n upon 2n plus 1, correct? So the first stage is for n equals to 1. What is going to be LHS here? So LHS is this one 1 upon 2n minus 1, तो आप 1 डाल लीजिए, 2n minus 1 into 2 into 1 plus 1. So ये देखिए कितना आ गया LHS 1 और ये 3, so 1 by 3. RHS में आप n equals to 1 डाल दें, so you have 1 upon 2 plus 1 which is 1 by 3. So ये for n के लिए this is true because LHS equals to RHS. Here LHS equals to RHS. Therefore we can say P1 is true. For n के लिए P1 जो statement है Pn, for 1 के लिए it is true. P1 is true. ठीक है. अब हमारा कौन सा स्टेप है? फाउंडेशन हो गया. अब एजम्पशन आएगा. एजम्पशन में आप क्या करते हैं? Let us assume that it is true for, that is Pn is true for, Pn भी लिख सकते हो या it is भी लिख सकते हो. Pn is true for some k, for some k which belongs to natural, ठीक है, some k which belongs to n. देन क्या हो जाएगा डियर? pk लिखिए या यहाँ से 1 upon 1 into 3 plus 1 upon 3 into 5 plus 1 upon 5 into 7 plus dot dot 1 upon 2k minus 1. ठीक है, जहाँ n है वहाँ k आप डाल देंगे into 2k plus 1 is equal to, ये RHS क्या दी हुई है? n upon 2n plus 1. So this is going to k upon 2k plus 1. 2k plus 1. ये हमने एज्यूम किया, इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए. अब हमारी दूसरी स्टेप क्या है? We shall prove that, या we will show that. So we shall show that it is true for k plus 1 also. ठीक है, k plus 1 also. Therefore तो LHS और RHS इसका क्या बन जाएगा? 1 by 3, 3 into 5 plus 1 upon 5 into 7 plus 1 upon 2k minus 1 into 2k plus 1. अब देर यहाँ पे k की जहाँ पे k है वहाँ k plus 1 डालिए.
तो 2k+2 - 1 हो जाएगा 2k+1, ठीक है, इंटू फिर k की जगह 2k+1 डालिए तो 2k+2+1 2k+3, ठीक है। यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उसको अच्छे से समझे। जहाँ k है वहाँ k+1 कर दो, 2 तो बाहर है, तो 2k+2+1 2k+3 आ गया, इज इक्वल टू k+1 अपॉन ये क्या हो जाएगा 2k+2 और ये +1 बिकम्स +3। ये हमारा RHS हो गया। अब इसे LHS RHS को प्रूव कर ले, ठीक है। आइए यहाँ LHS हमने लिख दिया, LHS इक्वल्स टू 1/1 × 3 + 1/3 × 5 1/5 × 7 प्लस डॉट डॉट 1/2k - 1 into 2k+1, correct, plus this is 1/2k+1 into 2k+3, करेक्ट। ये 1 है डियर, वो कंफ्यूज गड़बड़ दिख रहा है इसको, आपको इसको 1 कर देता हूँ मैं, ठीक है। दिस इज 1, दिस इज गोइंग टू बी 1, ठीक है। अब तो यहाँ तक हमें पता है कि हमने एज्यूम किया था जिसकी वैल्यू क्या थी k/2k+1, ये हमने एज्यूम किया हुआ है। एज्यूम वाला पार्ट तो आपको क्लियर है। तो ये क्या है k/2k+1, तो वी कैन से फ्रॉम 1 up to that part this is k/2k+1, ठीक है। और इधर आ गया डियर 1/2k+1 into 2k+3, ठीक है। दिस इज व्हाट, नाउ टेक कॉमन, 1/2k+1 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या रह गया, दिस इज k प्लस 1/2k+3, ठीक है। ये रह गया। फर्दर एलसीएम लीजिए, यहाँ एलसीएम लेते हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी 1/2k+1, यहाँ एलसीएम या तो ये हो गया 2k² + 3k+1 अपॉन 2k+3, करेक्ट। अब इसका फैक्टर देख लीजिए क्या आ रहा है। सो दिस विल बी 1/2k+1, ये तो डिनोमिनेटर में है ही, इसका फैक्टर देख लेते हैं 2k² + 3k+1 का, दिस इज k+1, इसका फैक्टर आप रफ में भी निकाल सकते हैं, k+1 × 2k+1 अपॉन 2k+3, ठीक है। तो ये 2k+1 और 2k+1 कैंसिल, लेफ्ट विथ k+1/2k+3, ठीक है। सो ये देखिए RHS आ गया k+1/2k+3, यही अपना RHS था, करेक्ट। तो दिस केम, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, and then we can say it is true for k+1 also. So pk+1 is also true. So finally induction में क्या आप लिख देंगे, hence Pn is true for, Pn जो अपने स्टेटमेंट लिया था, Pn is true for all n belongs to n. By principle of mathematical induction भी यहाँ जोड़ सकते हैं, Pn is true for, by the method of principal induction Pn is true for, यहाँ पे ऐसे जोड़ दो, hence by principle of mathematical induction Pn is true for all n belongs to n. That's it. Fine. So I believe all of you understood, जो अपॉन वाला है n तो दी हुई थी, करेक्ट। फिर से देख लीजिए, n Pn दी हुई थी, हमने for n = 1 लिया पहला, LHS = RHS, करेक्ट। देन Pn ट्रू हो गया, P1 is ट्रू, फिर आपने एज्यूम किया कि इट इज ट्रू फॉर सम k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इक्वेशन 1 बना दिया,
Now we shall prove that it is true for k plus 1 also. तो इसका LHS और RHS ये हो गया और हमने LHS को प्रूफ किया. ठीक है, यहाँ तक इतने दूर तक k अपॉन 2k प्लस 1 और 1 अपॉन 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3 इधर आई. एलसीएम लिया आपने and then after simplifying this we got LHS equals to RHS. So hence by principle of mathematical induction Pn is true for all n belongs to natural number. ठीक है, same format what you have done earlier also. ये स्टमक पार्ट जो है बीच वाला पार्ट इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, कॉमन वगैरह लेना. ठीक है. Now I'm taking one more question in this. Look at this. This is from your textbook only. Question number 9. ठीक है. Again they have given 1 upon 3 into 5 plus 1 upon 5 into 7 plus 1 upon 7 into 9 plus dot dot 2 n terms is equal to n upon 3 into 2n plus 3. 2n plus 3. Correct? This is what statement. ठीक है, अब इसे प्रूफ करना है तो वापस सेम लेट से Pn बी द स्टेटमेंट. सेम मेथड से आप लिखते हैं लेट Pn बी द स्टेटमेंट. Pn इक्वल्स टू हमारा क्या है 1 अपॉन 3 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 5 इंटू 7 प्लस 1 अपॉन 7 इंटू 9 प्लस अप टू n terms is equal to n upon 3 into 2n plus 3. 2n plus 3. The same way for n equals to 1 के लिए देख लेंगे LHS which is सी हमें n terms निकालना यहाँ रह गया. n terms अपने को निकालना पड़ेगा. So what is going to be the n terms? आप देखो ये 3, 5, 7 आ रहा है. ठीक है, AP में है तो इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ लिख दूँ मैं इसकी जगह मैं n टर्म्स लिख देता हूँ 1 अपॉन AP में है 3, 5, 7 तो इसके लिए आ गया 2n plus 1. ठीक है, और 5, 7, 5, 7, 9 ये भी AP में है, इसका Tn निकाल दीजिए तो ये आएगा 2n plus 3. सो दोनों ही 1 अपॉन आएगा. करेक्ट. सो LHS में 1 डालिए तो 1 अपॉन 2 plus 1 इंटू ये आ गया 2 plus 3 दैट इज 1 अपॉन 3 इंटू 5 1 अपॉन 15. RHS देख लीजिए, RHS क्या हो गया डेयर. दिस इज n अपॉन 3 इंटू 2n प्लस 3 है. तो n इक्वल्स टू 1 डाल रहे हैं 1 अपॉन 3 इंटू 2 प्लस 3. दिस इज ऑल्सो 1 by 15. करेक्ट. तो हमारा LHS इक्वल्स टू RHS हो गया. LHS इक्वल्स टू RHS. Therefore P1 is true. 1 के लिए ये ट्रू हो गया स्टेटमेंट. P1 is true. Now नेक्स्ट स्टेज में क्या करते हैं हम एज्यूम करते हैं. So let us assume that Pn is true for या it is true for जैसा लिखना चाहते हो. Pn is true for some k belongs to n. Fine. So क्या हो जाएगा. This is going to be 1 upon 3 into 5 plus 1 upon 5 into 1 upon 5 into 7 plus 1 upon 7 into 9 plus so on up to k के लिए क्या मिल जाएगा अपने को. Look at this. 1 upon 2k plus 1 1 upon 2k plus 1
इंटू 2k, k प्लस 1 है ना, तो 2k प्लस 3 इज इक्वल टू, आर एच एस में क्या चेंज होगी, यहाँ पे n अपॉन 3 इंटू 2n प्लस 3 है, n की जगह k आ गया, एंड दिस इज 3 इंटू 2k प्लस 3 हो जाए। ठीक है, देखो आप इसकी 2n की जगह यहाँ पे हमारे पास 2n है ना, 2n प्लस 3, सॉरी 2n प्लस 3, 2k प्लस 2 प्लस 2k प्लस 5 हो जाएगा। दिस इज k अपॉन 3 इंटू 2k प्लस 5। ठीक है, दिस इज 5, ये 5 है डियर। एक मिनट इसको ठीक से इरेज करके कर लेते हैं। दिस केम 2k प्लस 5, 2k प्लस 5। ठीक है, तो ये हमने एज्यूम किया, इसको इक्वेशन 1 देते हैं आप। अब व्हाट वी हैव टू डू, वी शैल शो नाउ, या we will prove that, या we shall show that, we shall show that it is true for, या Pn is true for, it is true, या Pn लिख सकते हो, Pn is true for k plus 1 also, k plus 1 also, और ये k plus 1 कहाँ बिलोंग कर रहा है, it belongs to natural, so 1 upon 3 into 5 plus 1 upon 5 into 7, 7 into 9 प्लस, ये तो k वाला टर्म है, ये पहले लिखा जाएगा, 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3 प्लस 1 अपॉन, अब k की जगह k प्लस 1 डालिए तो 2k प्लस 2 प्लस 1, ये आ गया 2k प्लस 3 इंटू, यहाँ हो जाएगा k की जगह k प्लस 1, so 2k प्लस 5, correct, and this is equal to k plus 1 3 into 2k plus 2 यानी 2k plus 7। ठीक है, so this is what your RHS। ठीक है, दिस इज, ये k के लिए बराबर हो गया k प्लस 1 के लिए 2k प्लस, हमने यहाँ गड़बड़ तो किया लगता है नहीं, k इक्वल्स टू डाला है 2k प्लस, यहाँ k प्लस 1 की जगह हमने ये गड़बड़ कर दिया तो पानी दो रहे एक मिनट, इसमें k इंटू 2k, 3 इंटू 2k प्लस 3 होगा, बिकॉज n इक्वल्स टू k ले रहे हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 2k प्लस 3 होगा, बिकॉज हमने यहाँ k प्लस 1 कर दिया है, इसको 2k प्लस 3 कीजिए। ठीक है, दिस इज 2k प्लस 3, और यहाँ पे भी हमने बराबर लिया है ना, यस 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3, k प्लस 1 के लिए ये हो गया 2k प्लस 1, अब k प्लस 1 के लिए 2k प्लस 3, और ये 2k प्लस 5, और यहाँ हो जाएगा 2k प्लस 5। ठीक है, ये अपने को प्रूफ करना है, तो LHS देख लीजिए, LHS वी हैव 1 upon 3 into 5 plus 1 upon 5 into 7, 1 upon 7 into 9, 1 upon 2k plus 1 into 2k plus 3 plus 1 upon 2k plus 3 into 2k plus 5। ठीक
ठीक है. So up to here तो all of you know this is given from equation 1. ये क्या दी हुई है, k अपॉन 3 into 2k plus 3. ये from equation 1 से हम वहाँ डाल सकते हैं. So this is k upon 3 into, what is that, 3 into 2k plus 3. 3 into 2k plus 3. और प्लस इधर क्या रह गया, दिस लेफ्ट 1 अपॉन 2k plus 3 इंटू 2k plus 5. ये हमारा लास्ट का टर्म रह गया, दिस वन. करेक्ट. अब यहाँ से एलसीएम क्या मिल जाएगा अपने को, पहले तो कॉमन आ जाएगा 1 अपॉन 2k plus 3. ये कॉमन ले लीजिए दोनों से. सो वी हैव k by 3 plus 1 अपॉन 2k plus 5. ये रह गया. ठीक है. अब आप यहाँ से एलसीएम वगैरह लीजिए, देखिए क्या रहता है. सो दिस इज गोइंग टू बी 1 अपॉन 2k plus 3. करेक्ट. और यहाँ से एलसीएम में आ गया 3 इंटू 2k plus 5. सो 3 इधर दिया तो ये आ गया 2k square plus 5k एंड हियर इट इज plus 3. अब इसका भी फैक्टराइजेशन देख लीजिए. 1 अपॉन 2k plus 3 इंटू ऊपर का फैक्टराइजेशन अगर आप करते हैं दैट इज गोइंग टू बी k plus 1 इंटू 2k plus 3. ये फैक्टराइजेशन आप रफ में भी करके आ सकते हैं. अपॉन 3 इंटू 2k plus 5. फाइन. अब इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस टर्म एंड दिस टर्म गेट कैंसिल. लेफ्ट विथ कितना रह गया, दिस इज k plus 1 अपॉन 3 times of 2k plus 5. एंड दिस इज योर RHS. यही RHS था, चेक कर लीजिए. दिस इज RHS, k plus 1 upon 3 times of 2k plus 5. ठीक है. So we can say LHS equals to RHS. Therefore, it is true for pk plus 1 also. Therefore, we can say pk plus 1 is also true. This is also true for k plus 1. So hence by principle of mathematical induction, it is true for all n belongs to natural number. That's it. ठीक है. तो यही सारा फॉर्मेट आप शुरू से ही कर रहे हो. करेक्ट. तो आई बिलीव अब ये बिल्कुल आपके फिंगर टिप्स पे बैठ गया होगा कि क्या क्या स्ट्रेटजी है n इक्वल्स टू 1 पे चेक करना. फिर जब LHS RHS इक्वल हो गया तो एज्यूम करना कि इट इज़ ट्रू फॉर Pn इज़ ट्रू फॉर सम k विच बिलोंग्स टू n. तो जहाँ जहाँ n है वहाँ आपने k डाला. ठीक है. RHS ये आया, ये एज्यूम किया इक्वेशन 1. नाउ वी शैल शो दैट इट इज़ ट्रू फॉर k plus 1 ऑल्सो. तो k plus 1 ऑल्सो के लिए यहाँ तक तो kth टर्म है, k plus 1 का टर्म आगे बढ़ जाएगा. RHS जहाँ जहाँ k था वहाँ k plus 1 डाल दिया आपने, और फिर LHS RHS आपने कर दिया. अप टू ईयर तो अपने को एज्यूम किया हुआ पार्ट है जो ये है k अपॉन 3 इंटू 2k plus 3, और ये आपका लास्ट वाला पार्ट रह गया. फिर एलसीएम लीजिए एंड यू कैन ईजिली सिंप्लीफाई, बिकॉज यहाँ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट मैथमेटिक्स नहीं छिपा है. कॉमन लीजिए, एलसीएम लीजिए, फैक्टराइज कीजिए, यू विल गेट द डिजायर्ड RHS. ठीक है. और मिलेगा ही RHS आपको. एंड फाइनली we can write that it is true for k plus 1 also. So hence by principle of mathematical induction, it is true for all n belongs to n. Correct. तो ये अपॉन वाले 1 अपॉन वाले टर्म को आपने देख लिया. इस टर्म में अपने को एक्स्ट्रा काम करना था कि n टर्म्स निकालने थे आपको. तो वो आप
ये 3 5 AP में दिख रहा है, 5 7 AP है, तो 1/2n+1 इंटू 2n+3 इसका nth टर्म आ गया। ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में जितने ये सारे सम्स किए हैं दैट इज सफिशिएंट, आगे करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है। मैं एक सम और ले रहा हूँ, बस इतने सम को आप करें, दैट इज सफिशिएंट इन दिस वन इन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, still there are 3 4 questions is there in your textbook, but no need to do it, आपको वो ज़रूरत नहीं है इतने सारे सम्स को करने की। ठीक है, आप केवल फोकस करें इतने ही सम जितने सम मैंने किया है। अभी 1 2 सम और ले लेता हूँ मैं। लुक एट दिस सम एडिशनल प्रॉब्लम। वी हैव क्वेश्चन 2 + 5 + 8 + 2n terms, 2n terms it is equal to n into 3n+1 अपॉन 2 है। ठीक है, इसको PMI से चेक करने का है। सो अगेन लेट Pn be the statement which is 2 + 5 + 8 plus up to n terms, तो इसका n terms हम निकाल लेंगे दूसरे स्टेप में, इज इक्वल्स टू n इंटू 3n+1 बाई 2। ये स्टेटमेंट है। तो आप पहले इसका tn टर्म भी यहाँ लिख दीजिए, nth टर्म, तो ये AP में जा रहा है, तो रफ में आप देख लीजिए ये 2 5 8 AP में जा रहा है ये, तो A अपना 2 है और D कॉमन डिफरेंस कितना है 3 है, तो इसका tn क्या हो जाएगा 2 + n-1 इंटू 3, D 3 है, so that is going to be 2 + 8 3n-3, तो 3n-1। ठीक है, तो इसका nth टर्म आप क्या लिख सकते हैं +3n-1। ठीक है, सो आइए फॉर n = 1 के लिए चेक करते हैं। तो LHS हमारा क्या है, LHS इज 3n-1। ठीक है, n की वैल्यू 1 डालिए तो 3 - 1 2। RHS देख लीजिए, RHS इज इक्वल टू n इंटू 3n+1 बाई 2। n = 1 डालिए तो 1 इंटू 4 बाई 2, तो ये 2 आ गया। देयरफॉर वी कैन से LHS इक्वल्स टू RHS, LHS RHS इक्वल हो गया। देयरफॉर P1 इज ट्रू, यानी ये n जो स्टेटमेंट है फॉर n = 1 के लिए ट्रू है, P1 इज ट्रू। Now let us assume that Pn is true for some k that belongs to natural number, k belongs to n है, that is n है dear, k belongs to natural, which means आप इस pk के स्टेटमेंट को क्या लिखेंगे, this is 2 + 5 + 8 + 3k-1। ठीक है, दिस इज 3k-1, क्योंकि जहाँ n है वहाँ k चला जाएगा, इज इक्वल्स टू k इंटू 3k+1 बाई 2। करेक्ट, सो दिस यू पुट इक्वेशन 1, क्योंकि ये हमने एज्यूम किया है विच इज़ ट्रू फॉर सम k, तो इसको हमने
2 + 5 + 8 + 3k - 1 = k into 3k + 1 by 2 कर दिया, करेक्ट। अब we shall prove that it is true for k + 1 also। k + 1 जो भी वो भी बिलोंग कहाँ करता है, नेचुरल में। k + 1 also, that is 2 + 5 + 8 + 3k - 1 तो kth है। अब इसमें k + 1 जहाँ पे k है k + 1 डालिए, प्लस 3k + 3 - 1 हो गया 3k + 2 इज इक्वल्स टू k + 1 इंटू 3k + 3 तो 3k + 4 आ गया, ठीक है। जहाँ जहाँ k वहाँ k + 1 आप डाल दो अपॉन 2, करेक्ट। ये हमारा k + 1 का टर्म हो गया। अब LHS = RHS देख लें। Therefore LHS 2 + 5 + 8 plus this is your 3k - 1 plus 3k + 2, फाइन। ये आपके टर्म थे k + 1 के LHS पार्ट। अप टू हियर हमने एज्यूम किए रखा है, वो क्या है, विच इज दिस इज एज्यूम वाला पार्ट कितना है, k इंटू 3k + 1 by 2। So we can write k into 3k + 1 by 2 plus 3k + 2, फाइन। ये हमारा। सो अब आप इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कीजिए। दिस इज गोइंग टू बी 3k² plus k plus 2 3 6k and plus 4, और दिस इज 2। यहाँ आ गया डेयर 3k² plus 7k plus 4, ठीक है, अपॉन 2। अब इसका फैक्टर निकाल लो। फैक्टर में आप मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से करोगे, सो यू विल गेट k + 1 इंटू 3k + 4 अपॉन 2, ठीक है, जो अपने को RHS के बराबर दिखा रहा है। दिस इज LHS = RHS। देखिए RHS ये दोनों इक्वल आ रहा है, करेक्ट। सो वी कैन से LHS = RHS, fine. So what you say, therefore pk + 1 is also true. pk + 1 is also true, and hence by principle of mathematical induction, hence by PMI, it is, or PN is, या PN लिख दीजिए, PN is true for, PN हमने स्टेटमेंट लिया है हमेशा याद रखने का, PN is true for all n belongs to natural number, correct, hence proved। एक एक स्टेप चेक कर लीजिए। n = 1, LHS = RHS कर दिया, ठीक है। P1 is true 1 के लिए, एज्यूम कर लिया k के लिए ट्रू है। Then we have to show that it is true for k + 1। Now we have to prove that it is true for k + 1। हमारे टर्म जो हो गया k + 1 और k + 1 वाले टर्म में, और ये RHS ये आ गया, फिर LHS हमने ये लिया। अप टू हियर एज्यूम वाला पार्ट, ठीक है। And then you have taken LCM and factorize, therefore LHS = RHS। So it is true for k + 1 also, फाइंड है। तो आप ऐसे सम की प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, इतने सफिशिएंट हैं, इतने में आप प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का
कंसेप्ट पूरा आप कर सकते हैं। ठीक है, एक मैं और सम ले रहा हूं, फटाफट देखो। दिस सम इज 1/1 into 2 into 3 plus 1/2 into 3 into 4 plus 1/3 into 4 into 5 plus 1/n into n plus 1 into n plus 2 is equal to n into n plus 3 upon 4 into n plus 1 into n plus 2. Fine. This is what your statement. So we'll start with the statement Pn ले लेंगे आप. So let Pn be the statement which is equal to this पूरी question को एक बार वापस लिख दी जाए, plus 1/2 into 3 into 4 plus 1/3 into 4 into 5 plus dot 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 1/n into n plus 1 into n plus 2 is equal to n into n plus 3 upon 4 times of n plus 1 into n plus 2. ठीक है, इसको बराबर से लिख ले, थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है इसलिए इसको, तो ये क्या है 4 into n plus 3. ठीक है, this is your statement. Now how we'll start? We'll take for n equals to 1. n equals to 1 ले लेते हैं, तो LHS हमारे पास LHS is 1/n into n plus 1 into n plus 2. करेक्ट, इसमें 1 डाल दीजिए तो ये हो गया 1 into 2 into 3. This is 1/6. Correct. Now we'll take RHS. RHS क्या हो जाएगा? RHS is 1 into 1 plus 3, it is 4 upon 4 into n plus 1, this is 2, n plus 2 into 3. So this is 1/6. So LHS equals to RHS. LHS equals to RHS. So it is true for n equals to 1. You can say P1 is true. Therefore P1 is true. कह सकते हैं P1 ट्रू हो गया 1 के लिए. करेक्ट. अब हम आते हैं एज्यूम पे. ये फाउंडेशन वाला पार्ट हो गया. नाउ विल गो टू एजम्पशन. एज्यूम करते हैं. let us assume that Pn is true for some k which belongs to natural. ठीक है, सो हमारी स्टेटमेंट क्या लिखी जाएगी? 1/1 into 2 into 3 plus 1/2 into 3 into 4, 2 into 3 into 4 plus 1/3 into 4 into 5 plus dot dot 1/, क्या है, k into k plus 1 into k plus 2, k plus 1, k into k plus 1 into k plus 2 is equal to, इसका RHS पार्ट क्या है, k into k plus 3, k into k plus 3 upon 4 into, देख लें, k plus 1 into k plus 2, k plus 1 into
k प्लस टू। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 लेते हैं ऑलवेज। नाउ what we write, now we shall prove that Pn is true for k plus 1 also, k plus 1 also। हमें क्या प्रूव करना है कि ये k plus 1 के लिए भी सही हो। ठीक है, तो LHS RHS दिखा दें। therefore 1 upon 1 into 2 into 3 plus 1 upon 2 into 3 into 4 plus 1 upon 3 into 4 into 5 प्लस k का टर्म यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। ये kth टर्म है, तो k प्लस 1 वाला टर्म क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ k है k प्लस 1, दिस इज k प्लस 1। k प्लस 1 क्या बन जाएगी k प्लस 2, और k प्लस 2 हो जाएगा k प्लस 3। ये तो LHS पार्ट हो गया। RHS पार्ट इसका क्या दिखेगा, तो ऊपर देख लीजिए k इंटू k प्लस 3 है, तो k प्लस 1 आ गया k की जगह, एंड k प्लस 3 बन गया k प्लस 4 अपॉन, नीचे देख लीजिए 4 तो कांस्टेंट है, k प्लस 1 इट बिकम्स k प्लस 2 एंड k प्लस 2 बिकम्स k प्लस 3। ठीक है, दिस इज द सिचुएशन, वी शैल प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर k प्लस 1। अब यहाँ पे LHS और RHS देखें। ठीक है, ये तो प्रूव करना है अपने को, तो अपने को LHS लिखना पड़ेगा फिर से। LHS वी हैव 1 upon 1 into 2 into 3 plus 1 upon 2 into 3 into 4 प्लस डॉट 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 कर दीजिए 1 upon k into k plus 1 into k plus 2 प्लस 1 upon k plus 1 into k plus 2 into k plus 3। ठीक है, ये अपना LHS पार्ट है, और अपने को ये RHS, ये जो RHS है ये दिखाना है। फाइन, सो इज इक्वल्स टू, इतने दूर तक के लिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से व्हाट वी कैन राइट, क्योंकि वो हमने अज्यूम कर रखा है, k इंटू के प्लस 3 अपॉन 4 इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2, सो k इंटू के प्लस 3 अपॉन 4 इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। ये हमने एज्यूम किया था k के लिए, विच इज ट्रू। लुक एट दिस वंस अगेन, 4 इंटू के प्लस 3 अपॉन, सॉरी k इंटू के प्लस 3 अपॉन 4 इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2, प्लस यहाँ पे रह गया 1 अपॉन के प्लस 1 इंटू के प्लस 2, 1 है, दिस इज 1 एंड k प्लस 3। फाइन, अब आइए यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन की जाए। सो दिस इज इक्वल्स टू, एलसीएम कितना कितना टर्म आ सकता है इसमें, 1 अपॉन, कॉमन ले लीजिए 1 अपॉन के प्लस 1, एक टर्म कॉमन हुआ, k प्लस 2 भी कॉमन आ जाएगा 1 अपॉन के प्लस 2, करेक्ट। सो इनसाइड लेफ्ट विथ k इंटू के प्लस 3 अपॉन 4, और इस साइड रह जाएगा 1 अपॉन k प्लस 3। ठीक है, दिस इज लेफ्ट। नाउ फर्दर सिंप्लीफाई की जाए, सो दिस इज गोइंग टू बी 1 अपॉन k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, यहाँ एलसीएम लीजिए 4 इंटू 4 टाइम्स ऑफ k प्लस 3, दिस इज 4 टाइम्स ऑफ k प्लस 3 ले सकते हैं। क्लियर, दिस इज 4 टाइम्स ऑफ k प्लस 3, तो ये k इंटू के प्लस 3 का क्या हो गया, होल स्क्वायर,
ठीक है, और k प्लस 3 दिया तो ये आपको 4 मिल गया, करेक्ट। यहाँ तक अंडरस्टूड। नाउ इज इक्वल्स टू, लुक एट दिस, 1 अपॉन k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। थोड़ा लेंदी सम है तो अच्छे से करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड। अब ये k प्लस 3 का होल स्क्वायर ब्रेक कीजिए, सो दिस इज k इंटू k स्क्वायर प्लस 2k 6k 2ab 6k प्लस 9 प्लस 4 अपॉन ये आ गया 4 इंटू k प्लस 3। ठीक है, अब टू ईयर क्लियर, अप टू इंटू कर दिया आपने, फिर इंटू करिए 1 अपॉन k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। यहाँ पे इंटू करके क्या मिलेगा अपने को, k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 9k एंड प्लस 4। ठीक है, अपॉन k 4 इंटू k प्लस 3। ठीक है, अब ये क्यूबिक इक्वेशन हो गई, करेक्ट। क्यूबिक इक्वेशन को तोड़ने का तरीका पता है अपने को, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट में k इक्वल्स टू 1 माइनस 1 पुट करके देखेंगे आप, करेक्ट। इसका फैक्टर निकालेंगे। सो अगर मैं देखूँ इसमें k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर 9k प्लस 4 का फैक्टर क्या आएगा, तो अगर इससे बचना है, ये करने के लिए आप कर सकते हो, बट आप जो हमारे पास RHS है उसके अकॉर्डिंग आप देख लो कि क्या टर्म चाहिए अपने को, तो k प्लस 1 इंटू k प्लस 4 चाहिए, ठीक है, न्यूमरेटर को। और डिनोमिनेटर में अपने पास क्या चाहिए, k प्लस 2। तो कहने का मतलब ये k प्लस 1 जा रहा है, न्यूमरेटर में हम इसको k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये काम आप स्मार्टली यहाँ कर सकते हो, टाइम को बचा सकते हो। तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दिया और इंटू k प्लस 4 कर दिया, ठीक है, k प्लस 4। आप देखो ये, इसको आप इंटू करोगे तो ये न्यूमरेटर मिलेगा। नीचे क्या पड़ा है, k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, दिस इज k प्लस 2 इंटू 4 टाइम्स ऑफ k प्लस 3। फाइन, एक k प्लस 1 एक k प्लस 1 कैंसिल, so finally we have k plus 1 into k plus 4 upon ये क्या रह गया, k plus 2 4 times of k plus 2 into k plus 3 plus 3। ठीक है, एंड दिस इज योर RHS, यही RHS है हमारा। चेक कीजिए, k plus 1 into k plus 4 upon 4 times of k plus 2 into k plus 3. This is the RHS. Check it. तो यहाँ पे हमने इस पूरे टर्म में, यहाँ पे हमने क्या किया आपको समझ के लीजिए, ये जो के क्यू वाला टर्म है इसको आप या तो फैक्टर निकाल के k इक्वल्स टू -1 डाल के फैक्टर निकाल के करना पड़ेगा, या फिर कॉमन सेंस लगाइए कि RHS में क्या बचा हुआ था। तो मैंने क्या किया, k प्लस 1 का होल स्क्वायर लिया, दिस वन इंटू k प्लस 4, सो दैट एक k प्लस 1 कैंसिल होगा तो RHS मिल जाएगा। तो इसका फैक्टर हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। ये स्मार्ट वर्क कीजिए कि सो दैट यू कैन सेव योर टाइम। यहाँ पे थोड़ा आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा होल क्यू वाले टर्म में, या फिर आप इसको फैक्टराइज कीजिए। वो मेथड है ना, हीट एंड ट्रायल मेथड, k इक्वल्स टू -1 डालिए आप, ठीक है। तो -1 डालेंगे तो ये पॉसिबली क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो k प्लस 1 इसका वन ऑफ द फैक्टर, k प्लस 1 से फिर इसको डिवाइड कीजिए, एक क्वाड्रेटिक मिलेगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर मैंने क्या बोला, RHS को देखते हुए आप स्मार्टली k plus 1 का होल स्क्वायर इंटू k plus 4 बना दिया, and then some term get cancelled. So LHS equals to RHS, ठीक है। Therefore we can say it is true for pk plus 1 also. pk plus 1 is true for all n belongs to n, for all k belongs to n कर सकते हो, for all k plus 1, and hence by principle of mathematical induction
it is true for all n, for all n belongs to natural number. This is what a proof. Fine. So आई थिंक यू अंडरस्टूड ये तीन वाले टर्म में थोड़ा सा ये क्यूबिक वाले पार्ट को अच्छे से स्मार्टली हैंडल कीजिए. ठीक है, इसको आप फिर से समझिए. तो मैंने क्यू प्लस 6a² 9k प्लस 4 का फैक्टर RHS को देखते हुए निकाला, क्योंकि यहाँ देखो k प्लस 1 इंटू के प्लस 4 है. ठीक है, और नीचे हमारा यहाँ पे k प्लस 1 दिख रहा था. k प्लस 1 यहाँ नीचे दिख रहा है. लुक एट दिस, ये k प्लस 1 यहाँ पे था, तो मैंने इसका फैक्टर में k प्लस 1 होल स्क्वायर बनाया इंटू k प्लस 4, सो दैट एक k प्लस 1 कटेगा तो ये आ जाएगा ना RHS. फाइंड हियर. सो मैथमेटिकल इंडक्शन में जो मैंने अभी आज कुछ क्वेश्चन लिए हैं, और भी टेक्स्ट बुक में 2-3 टाइप सम पड़े हुए हैं, सो डोंट डू इट. इतना आप सफिशिएंट है, इतने पे आप वर्कआउट कीजिए. जितने भी सम हमने किया है और मैंने जो होमवर्क दिया आपको, वो सम इज सफिशिएंट फॉर PMI. ठीक है, तो PMI के लिए आप, आई बिलीव ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, इतने सम इज सफिशिएंट. ठीक है, सो नाउ आई एम गिविंग यू another 3 problem for homework that all of you have to try. This is first question. It is 1 upon 1 into 4 plus 1 upon 4 into 7 plus 1 upon 7 into 10 plus dot dot 1 upon 3n minus 2, 3n minus 2. This is 1 upon 3n minus 2 है ये, into 3n plus 1 is equal to n upon 3n plus 1. ठीक है, this is first question. And second question is, करके देखिए, surely you will get it the answer. One upon 3 into 8 plus 1 upon 8 into 11 plus 1 upon 13 into 18 plus dot dot 2 n terms is equal to n upon 3 into 5n plus 3. 3 into 5n plus 3. Okay, this is n here. n upon. करेक्ट, यहाँ पे आपको n टर्म्स निकालने होंगे इस क्वेश्चन के अंदर. ठीक है, एंड देन यू कैन गेट द प्रूफ. फाइन. सो दीज 2 क्वेश्चन ऑल ऑफ यू हैव टू डू टुडे, एंड वट एवर सम्स वी हैव डन अर्लियर, दो सम्स. ठीक है, इतने सम्स की प्रैक्टिस कीजिए. PMI, दैट्स इट. नेक्स्ट क्लास से वी विल स्टार्ट द बाइनोमियल थ्योरम. बाइनोमियल थ्योरम. From the next class we will start binomial theorem. Next class. Correct. So for today you have these 2 sums for homework. बनाएंगे आप. पीछे के जितने सम्स हमने प्रैक्टिस किया वो भी देखिए. करेक्ट, एंड डू इट. आई बिलीव PMI में आप इतने सम्स, कई बच्चे बोल रहे होंगे सर टेक्स्ट बुक में 2-3 सम रह गया, but don't do it those sums. इतने सम्स आपने अगर 10 सम किए, that is sufficient. ठीक है, चलो, that's it for the day. Take yourself and do best, dear. Thank you very much.